اور اب خبر تفصیل سے ضلع ڈوڈا کے پنجاری نالے کے قریب ایک کروزر گاڑی کو بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس میں 16 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ رپورٹ ہے کہ لگ بھگ 3:30 بجے یہ گاڑی ڈوڈا سے منگوتا مرمت جا رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک سے پھسل کر پنجاری نالے کے قریب گہری کھائی میں جا گری۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ جائے موقع پر پہنچے اور بچاؤ کارروائی شروع کی۔ بعد میں پولیس موقع پر آ پہنچی اور زخمیوں کو گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا منتقل کیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حادثے میں 16 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ گاڑی میں 17 افراد سوار تھے، جو کہ گنجائش سے زیادہ ہے۔ مقامی لوگوں نے اس حادثے کے لیے ٹریفک پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ ٹریفک عملہ ہر وقت پیسے جمع کرنے اور ڈرائیوروں کو غیر ضروری طور پر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ میں صبح خود اس روڈ پہ چل کے آیا ہوں اور ڈی ایس پی ٹریفک صاحب صبح سے وہاں ناکے پہ بیٹھے تھے، اور یہ دربھاگیہ ہے کہ اگر کسی گاڑی کی 15 یا 10 یا 12 سیٹنگ کیپیسٹی ہے، اس میں 17 کیسے بیٹھے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ہم روز ہسپتالوں میں ڈیڈ باڈیاں لینے آئے ہوئے ہیں، ہم کو روز یہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم کو ڈیڈ باڈیاں ہی لے کے جانا ہے۔ پرشاسن کی طرف سے روڈ پہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہے۔ آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ یہاں پیچھے ادیان پور کے پاس ہوا تھا۔ ہم کچھ دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہی کچھ دن کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنا گاڑی ڈرائیوروں کو اور ان کو کستی ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ پھر بول جاتی ہے اور ایڈمنسٹریشن بزی ہو جاتی ہے اپنے روٹین کاموں میں۔ ہائی کورٹ سے بھی آرڈرز آئے کہ کریش بیریئرز کی ضرورت ہے ان روڈوں پہ، لنک روڈ جتنی ہے، لیکن کسی کی جوں تک نہیں ہلتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاؤ کوئی بھی مدعا لے کے تو وہ آگے سے ہمارے ڈی سی صاحب سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ دفعہ 370 ہٹنے کے کیا فائدے ہوئے۔ ایڈمنسٹریشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ لیکچرز دیتے رہے۔ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کرے، لوگوں کو فیسلٹیز دے، لوگوں کو یہ ان روڈ ایکسیڈنٹ سے بچائے۔ ہمارے پاس 16 ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، وہ سارے براڈ ڈیڈ تھے اور ایک انجرڈ ہے۔ ایک انجرڈ ہم نے ریفر کیا جموں کے لیے۔ کوئی گاڑی کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ یہ گاڑی سننے میں آ رہا ہے یہ مرمت جا رہی تھی، ٹریکس تھی، تو اباؤٹ 17 پیسنجرز جو تھے اس میں سوار تھے۔ 16 تو براڈ ڈیڈ ہیں اور ایک ہی انجرڈ ہے، وہ لگ بھگ سٹیبل ہے، اس کو ہم نے جموں بھیج دیا۔ کرگل کے پکسم علاقے میں ایک ٹیمپو کو سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ ٹیمپو لیہ سے کرگل جا رہی تھی۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 13 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع اسپتال کرگل میں داخل کیا گیا ہے۔ گاندربل کے گلن علاقے میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا۔ انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا ہے، اس کی لاش برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق علاقے میں ایک اور ملیٹنٹ کے موجود ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے فوج کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ انکاؤنٹر کے دوران ایک فوجی جوان زخمی ہو گیا۔ زخمی جوان کی شناخت یوپی کے حوالدار راہل کے طور پر کی گئی ہے۔ راہل کا تعلق 24 RR سے ہے، اس کی حالت مستحکم ہے۔ علاقے میں فائرنگ رک گئی، تاہم تلاشی آپریشن جاری ہے۔ ہم کلن میں کھڑے ہیں تو یہاں انپٹ تھا، اسپیسیفک انپٹ پہ سرچ کی تھی۔ اس دوران فائرنگ ہوئی اور ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی وغیرہ ریٹریو کر لی ہے، اور باقی جو پاسبلٹی ایک کی لگ رہی ہے، سرچ چل رہا ہے، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، بٹ فیملیز کو ایویکویٹ کر کے جب سرچ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے زیادہ چانسز نہیں ہیں، کم چانسز ہیں، بٹ اسٹل ہم سرچ کریں گے۔ ہاؤس ٹو ہاؤس چل رہی ہے جو سرچ، ابھی وہ کمپلیٹ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر ضلع پنچ کے شاہپور اور کیرنی سیکٹر میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ قریب شام 4 بجے یہ فائرنگ شروع کی گئی، جو کہ آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھی۔ پاکستانی فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی مکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہندوستانی آرمی کی جانب سے بھی فائرنگ کا معقول جواب دیا جا رہا ہے۔ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لوگ خوف کی وجہ سے یا اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں یا پھر محفوظ مقامات پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بہت فائر ہوتے ہیں، ہم اپنے گائے بھینس باہر چرانے جاتے ہیں، دن میں کام کرنے جاتے ہیں اپنی فصل میں، تو پاکستان کی طرف سے جب گولہ باری ہوتی ہے ہم ڈر کے مارے اندر چلے جاتے ہیں، چھوٹے بچے شور کرتے ہیں، ہمیں یہاں پہ کوئی سہولیت نہیں ہے۔ ایک دن بھر ہم کام کرتے ہیں تو ان کے گولے آتے ہیں، جب پھر ہمیں کام چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، ادھر ہی ہمارے رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، مال باروں سب کچھ۔ آج سری نگر سے بارہمولہ جانے والی ٹرین خدمات 3 مہینے کے عرصے کے بعد بحال کر دی گئی۔ خصوصی پوزیشن کو منسوخ کرنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے
وادی میں ٹرین خدمات کو احتیاطی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ اس بیچ اس اقدام سے مقامی لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ سری نگر بانہال ٹرین خدمات کو بھی بحال کر دیا جائے تاکہ مسافروں کو سفر میں آسانی ہو۔ وہیں ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سری نگر بانہال سیکشن کو برف باری کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ اس پر بحالی کا کام جاری ہے اور بہت جلد سے ہی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ بہت سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی 3 مہینے سے پورا اچھے سے نہیں چل رہا ہے، تو اس سے بہت ساری لوگوں کو سہولیات ملے گی، اپنے مسافر اپنے جگہ اچھے سے پہنچیں گے۔ یہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے، یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا لیٹ ہی لیا لیکن اچھا انیشیٹو نے لیا، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اب زیادہ بہتر اور اچھا تب رہتا کہ اگر یہ پورا اچھے سے ہو جائے گا پھر سے ریسٹور، کیونکہ ابھی یہ خالی ساؤتھ سائڈ سے نہیں ہوا ہے، تو یہ پورا ہو جانا چاہیے، وہ ٹھیک رہے گا۔ جس میں کافی مشکلات ہیں، میں عام لوگوں کو ٹرین جانے سے آسائش ہو جائے گی، کرایہ بھی کم ہے، اس میں آنے جانے میں بھی کافی آسائش ہو جائے گی بنسبت سومو سے یا باقی بس سے۔ کیا ہوتا ہے؟ کافی مشکلات ہے، کرایہ بھی کم ہے، اس میں سفر بھی آسائش کا ہے، مشکلات ہیں، عام لوگوں کو مشکلات ہیں۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ٹرین یہ چاہتے ہیں ٹرین چیز چلنی دور کے۔ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کو ہٹائے جانے کے بعد احتیاطی طور پر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹرین خدمات کو روک دیا گیا تھا، اور آج 3 مہینے کا وقفہ گزر جانے کے بعد پھر سے سری نگر بارہمولہ ریل سروس کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور آج سے یہ سروس باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہ سروس جاری رہے گی، اور جو سری نگر بانہال ٹریک ہے اس پر موسم کی خرابی کی وجہ سے ٹریک پر کئی جگہوں پہ خرابی ہوئی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ریلوے کا عملہ لگا ہوا ہے، اور جلد سے جلد سری نگر بانہال ٹرین کو بھی عام لوگوں کے لیے بحال کیا جائے گا۔ سمیع اللہ، نیٹ ورک 18 بڈگام۔ بابا جتو کا سالانہ جھڑی میلہ آج سے جموں کے جھڑی علاقے میں شروع ہوا۔ میلے کے پہلے روز آج جموں اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے بابا جتو کے مندر میں حاضری دی۔ اس موقع پر پورے علاقے میں میلے کا سما تھا۔ عقیدت مند لمبی لمبی قطاروں میں بابا جتو کے درشن کا انتظار میں دیکھے گئے۔ اس موقع پر سول اور پولیس انتظامیہ کی طرف سے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ میلہ 1 ہفتے تک جاری رہے گا، جس کے دوران مزید یاتری بابا جتو کے درشن کے لیے آئیں گے۔ واضح ہے کہ بابا جتو کے ساتھ جہاں لوگوں کی مذہبی عقیدت جڑی ہوئی ہے، وہیں بابا کو ایک ترقی پسند کسان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لگ بھگ 700 برس سے جو پرتھا چل رہی ہے، بابا جی کے دربار میں جو ہے شردالو دور دور سے آتے ہیں، پنجاب سے، ہریانہ سے، دلی سے، جموں پنجاب آدی کھیتروں سے جو ہے یہاں پہ شردالو درشن کرنے آتے ہیں، اور اپنی منہ مانگے مرادیں پا کے جو ہے بابا جی کے دربار میں جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ امرتسر سے آئے ہیں ہم یہاں پر، اور یہاں پر جھیڑی کا میلہ لگتا ہے، بابا جتو کا میلہ ہے، اور جو ان کے ساتھ ماتا جی ہیں وہ ویشنو دیوی مانی جاتی ہیں، اور یہاں کی بہت پرانی مانتا ہے۔ کئی لوگ یہاں پر شردالو ماتھا ٹیکنے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ان کی ہر کوئی منوکامنا پوری ہوتی ہے۔ ہم پنجاب کے بسی پٹھانا میں سے آئے ہیں، اور یہ ہمارے کلگرو ہیں، اور ہم یہاں ہر سال آتے ہیں۔ یہاں کے استھان کی بہت مانیتا ہے، اور ہمارا ماتھا ٹکتا ہے یہاں پہ۔ ہر سال میں ادھر آتے ہیں، بہت زیادہ مانتا ہے اس کی، جو بھی سکھنے کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے ادھر۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی گرو نانک جینتی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر سکھ طبقے کے لوگوں نے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کا خیر مقدم کیا۔ پیش ہے سنم تصدق کی یہ رپورٹ۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی گرو نانک کا 550واں یوم پیدائش نہایت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سری نگر کی چھٹی پادشاہی میں صبح سے ہی عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہا۔ کشمیر میں چل رہے حالات اور خراب موسم کے باوجود بھی ہزاروں لوگ یہاں پہنچے۔ اس موقع پر شبد کیرتن کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ پرکاش اتسو پر موجود لوگوں نے تمام انسانیت اور آپسی بھائی چارے کے لیے دعائیں کی۔ مذہب نہیں سکھاتا آپ سے پیار رکھنا، ہم سب سے پیار کریں۔ تو گرو گرانتھ صاحب کا قول ہے، سچے صاحب سیوں من مانے،
हर सब में अंतर जाने। इबादत बंदगी का आउटपुट यही है कि हम मखलूक से प्यार करें जी। तो अल्लाह रखन जो ने क्या सुंदर लिखा है, शाही है ठप अपनी ठाठ मगर यूं फकीर है, नानक की तरह हिंदू मुसलमानों के पीर है। गुरु नानक साहब सबके गुरु थे, सबको पैगाम दिए, अपने मज़हब में रहो, खुदा की जिक्र करें। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है छठी पातशाही गुरुद्वारे में, हमारी 6 पातशाही की यहाँ पे गुरुद्वारा है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो रिलीजियस प्रोसेशन है वो सब यहाँ पर करते हैं। एंड इनफैक्ट संगत, हमारे रिलीजन में संगत को बहुत माना जाता है, तो यहाँ पर आके संगत के दर्शन करके हम निहाल होते हैं। अपने जो लिविंग गुरु हैं हमारे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। एंड इनफैक्ट क्योंकि हमारा फेस्टिवल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको देख के खुशी होती है। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी की लख लख बधाई सारी पूरी यूनिवर्सल पूरी कायनात को देता हूँ। आज गुरु जी का जन्मदिन है, 550 साल हम मना रहे हैं। गुरु जी ने पहले कहा है नाम जपो वाणी छको किरत करो, गुरु जी का फरमान है। और गुरु जी के ये फरमान भी है, ओवरे अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उपजिया कौन पर मंदे। गुरु नानक के आखिरी आरामगाह करतारपुर के लिए रास्ता खोलने पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये सिखों की दैरीना मांग थी, जिसे तनाव के बावजूद दोनों मुल्कों ने गुरु नानक के 550वें साला तकरीबात पर खोल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान को करीब लाने में मददगार साबित होगा। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस पर हम लोगों ने सब कश्मीर की अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की, सब इंसानियत के लिए दुआएं की, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने यही दर्ज दिया है कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब एक है, वो उसके बनाए हुए लोग हैं। तो ये वक्त आ गया, मौका मिल गया दोनों सरकारों में, पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत की तरफ से और हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, जो ये कॉरिडोर का मसला बना, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इससे हमारे गुरु नानक देव जी के 50 दिन हम मना रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान की दुनिया के कोने कोने में मना रहे हैं। और हमको ये मौका मिला हमारी कौम को कि हम पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब का, कि जो जहाँ गुरु नानक देव जी ने 18 साल खेती का काम किया, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो उसने वहाँ पर गुजारा, तो वहाँ मिलने का मौका मिला है। ये हमें बहुत, हमारे बहुत स्वाभाविक का दिन है, ये बहुत अच्छा मौका मिला हमारे सिखों की। जो करतारपुर कॉरिडोर है ये भी एक ब्रिज का काम कर रहा है दो कंट्रियों में। इसको हर एक जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है इनको एनकरेज कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक अच्छा स्टेप कहा है कि जो दो कंट्रियों को आपस में जोड़ने के लिए करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। चलो उम्मीद करते हैं हम लोग कि करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपस में प्यार मोहब्बत है, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो दूर करेगा करतारपुर कॉरिडोर। कश्मीर में पहले से ही आपसी भाईचारे की कई मिसालें मौजूद हैं। वहीं अगर छठी पातशाही की बात करें तो ये हरि पर्वत के दामन में वाक़े है। एक तरफ शारका देवी मंदिर है तो दूसरी जानिब मखदूम साहब की दरगाह है, और पहले से ही यहाँ के लोग आपसी मेल मिलाप से रहते आए हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ कश्मीर में भी गुरु नानक देव जी का 550वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और यहाँ पे सुबह से ही लोग हाजिरी देने और माथा टेकने के लिए आते रहे। और वहीं यहाँ पे आए लोगों ने इस बात की भी खुशी जताई कि करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है, और जो न सिर्फ सिख पंथ को उनके गुरुदेव जी के दरबार में जाने का मौका फराहम करेगा, बल्कि इनका ये भी कहना था कि करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के माबेन आपसी रंजिशें और दुश्मनियों को कम करने और दोस्ती के नए रिश्ते जोड़ने का काम भी करेगी। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर आज जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खुसूसी शब्द कीर्तन का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के चांद बीबी गुरुद्वारे में मुनक्किद हुई, जहां सिख संगतों ने हाजिरी देकर खुसूसी शब्द कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस गुरुद्वारे में हाजिरी दी। वादी हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रही है। ऐसे में यहाँ पर मनाए जाने वाले मजहबी त्यौहार से भी इस भाईचारे की भरपूर अक्कासी होती है। अनंतनाग के मटन साहब का गुरुद्वारा न सिर्फ
تاریخی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہاں سے بھی ہندو مسلم سکھ اتحاد کی صدا ہمیشہ بلند رہی ہے۔ آج کے پرکاش اتسو کے موقع پر بھی کچھ اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ پیش ہے مدثر قادری کی خاص رپورٹ۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کشمیر نہ صرف اپنی منفرد خوبصورتی کی وجہ سے عالمی سطح پر مشہور ہے، بلکہ یہاں کا مذہبی بھائی چارہ بھی کشمیر کے حسن میں چار چاند لگاتا ہے۔ پرکاش اتسو کی دھوم جہاں سارے ملک میں ہے، وہیں گرو نانک دیو جی مہاراج کی 550ویں یوم پیدائش پر ان کے پیغام کی عکاسی گرودوارہ مٹن صاحب سے بخوبی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ گرودوارہ کشمیر کی ایک میراث تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ مذہبی عقیدے کے مطابق سکھوں کے پہلے بانی گرو نانک دیو جی نے کشمیر میں سکھ مذہب کے پرچار کے دوران مٹن صاحب میں اپنے مبارک قدم رکھے تھے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں 1828 میں یہاں پر ان کے چیف ان کمانڈر ہری سنگھ نلوا نے گرو نانک صاحب کا ایک شاندار یادگاری گرودوارہ قائم کیا۔ 7 گرودوارے قائم کیے اس چشمے کے کنارے کے ارد گرد، جن میں گرو گرنتھ صاحب کی 7 مقدس جلدیں انہوں نے لاہور سے اونٹوں پر سوار کر کے یہاں پر انسٹال کی، اور اس گرودوارہ صاحب کے ساتھ موزہ ڈورو ویری ناگ میں 7 کھروار زمین بھی جاگیر کے طور پر منسلک کر دی گئی۔ کشمیر میں یہ تواریخی استان مانا جاتا ہے گرو نانک دیو جی مہاراج کا۔ اتنی جتھے جو ہم نے دربار صاحب امرتسر سے بھی منگائے ہیں وہ بھی یہاں کیرتن کریں گے، تو ہمارا میسیج لوگوں کو یہی جاتا ہے، گرو نانک دیو جی کا میسیج ہے، اولے اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اپجے کون پلے کو مندے۔ ہم انسان ہوئے، گرو نانک دیو جی کا اچارن ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، ہندو مسلمان سکھ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ میسیج جانا چاہیے کہ ہم سب ٹھیک طرح سے رہیں۔ اور ہمارے ایک اور بھی ہے کہ ہم نریندر بھائی مودی کو بھی اور عمران خان کو بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے آج ہمارے گرو نانک دیو جی کا ایک استھان ہے جس کو کرتارپور میں، جو پاکستان کرتارپور میں ہے، جو انہوں نے کھول دیا ہے، تو وہاں ہم آپ وہاں جا سکیں گے، ان کا درشن بھی ہم کر سکیں گے۔ مٹن صاحب میں پرکاش اتسو کے موقع پر جہاں سکھوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی، وہیں یہاں کے مقامی مسلمانوں اور ہندوؤں نے سکھوں کے شانہ بشانہ چل کر امن اور محبت کا پیغام دیا۔ ہمارے یہاں ہندو مسلم سکھ اتحاد ہے، ہم ان کو بڑے دن کا مبارکباد دیتے ہیں، سب کو مبارک دیتے ہیں، بہت شبھ کامنیں دیتے ہیں۔ ہندو کو ہوتا ان کو مبارکباد دیتے ہیں، مسلمانوں کو یہ مبارکباد دیتے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے 3 دنوں سے اکھنڈ پاٹ صاحب یہاں سٹارٹ ہوئے، اور تینوں قومیں مسلمان جو ہے یا ہندو جو یہاں کے رہنے والے ہیں یا سکھ، یہ تینوں مل جل کے اکٹھے یہ تہوار مناتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہی اپدیشوں پہ پوری دنیا چلے۔ گرو نانک دیو جی کی میسیج یہ تھی کہ یونیورسل بردرہڈ، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یونیورسل بردرہڈ کشمیر میں جو قائم پہلے سے تھی وہ رہے، اور یہ بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہے۔ واضح ہے کہ وادی کی موجودہ صورتحال کے چلتے جہاں عام زندگی کافی متاثر ہوئی تھی، وہیں پرکاش اتسو کے موقع پر مٹن صاحب سے آج امید کی ایسی روشنی نظر آئی ہے جسے وادی کشمیر میں پھر ایک بار امن اور پیار کی فضا مہکنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔ وادی کشمیر میں لگاتار بند کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ آج بھی سری نگر شہر میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے، تاہم سری نگر کے لال چوک اور دیگر کچھ علاقوں میں دوپہر تک دکانیں کھلی نظر آئی۔ نجی ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چلتا رہا، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب رہا۔ اس بیچ لال چوک سونوار روٹ سے کچھ منی بسیں چلتی نظر آئیں۔ وادی بھر میں پری پیڈ موبائل اور انٹرنیٹ سروس لگاتار بند ہے۔ صحافیوں کی جانب سے سری نگر میں انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سری نگر کی پریس کلب سری نگر میں کئی صحافی جمع ہو گئے اور 100 روز سے انٹرنیٹ پر پابندی کے خلاف انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کم از کم صحافیوں کے لیے انٹرنیٹ سروس جلد سے جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پابندی سے ان کے کام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر سے 5 اگست کو دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے ساتھ ہی انتظامیہ کی جانب سے انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا تھا۔ is that internet has been snapped in Kashmir, and it has really hampered journalism for all reporters. As you all know, you're also practicing photojournalists and video journalists,
it's a hassle. It almost amounts to, it actually amounts to taking away basic tools of journalism in a day and age like this. And we demand that the services be restored. We're not demanding a freebie. We're not demanding that internet services be provided free to anyone. We're just demanding this very basic fundamental tool of journalism be restored because we're paying for it. And the media facilitation center that's been created with 10 odd internet enabled workstations is not a solution. It's almost humiliating walking in there every time you have to punch in your name, your details, your time, and you're not able to use internet enough. Internet is not only useful for communicating what you have to report, you also have to read a lot of stuff. You also have to inform your context, because if you don't read what is happening elsewhere, what's being reported by others, you're not able to do proper journalism. And it amounts to choking journalism, snapping internet services like it has been for the last 100 days. जम्मू कश्मीर में सकाफती सरगर्मियों को बढ़ावा देने और यहाँ के बुनियादी ढांचे में खामियों को दूर करने के लिए मरकजी वजारत सकाफत के आला अफसरों की टीम ने कई मकामात का दौरा किया। वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी निरुपमा कोत्रो और नेशनल साइंस म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर कुमार ने श्रीनगर के SPS म्यूजियम का भी मुशाहिदा किया। साथ ही मेहमानों ने कल्चरल एकेडमी के ऑडिटोरियम में 21 किताबों की रस्मी रुनुमाई की तकरीब में भी शिरकत की। खास इसलिए आए हैं कि हम कश्मीर में साइंस सेंटर 2 कम से कम बनाना चाहते हैं, लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू में, श्रीनगर में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आप देखते होंगे म्यूज़ियम में बच्चे बहुत कम आते हैं, वो बोर हो जाते हैं, समझते नहीं कि क्या मूर्ति रखी है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है। लेकिन साइंस सेंटर में जब आप उनको फ़न विद साइंस नई चीज़ें दिखाएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी जागेगा। तो साइंस सेंटर बनाना अभी पाइपलाइन में है और यहीं SPS म्यूजियम के बगल में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइंस सेंटर, और जम्मू में भी आएगा। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का जायजा लेने की गर्ज से जवाहर टनल, काजीगुंड, डूरू और दीगर मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। DC ने कौमी शाहराह पर कायम रिलीफ सेंटरों का भी मुआयना किया और वहां पर दरमानदा मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों के लिए खिदमात का जायजा लिया। DC ने रिलीफ सेंटरों को 24 घंटे कारगर रखने और कौमी शाहराह पर बर वक्त बर्फ हटाने के काम की हुक्काम को हिदायत दी, जबकि दरमानदा मुसाफिरों के लिए बैंडिंग, हीटिंग और बिजली सहूलियात बहाल रखने की भी हिदायत दी। हालिया बर्फबारी से मेवा सनत को हुए नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने जिला कुलगाम में कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहां की सूरत हाल के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। इनके हमरा अनंतनाग और कुलगाम के चीफ हार्टिकल्चर अफसर्स के अलावा मुतल्लिका महकमे के ओहदेदार मौजूद थे। डायरेक्टर ने कई बाग मालिकीन से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बाग मालिकीन ने अपनी तशवीश जाहिर की और इंतजामिया से अपील की कि उनकी मदद करें। डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने यकीन दिलाया कि उनका मामला जल्द ही उठाया जाएगा। जिले में मेवा सनत को काफी धक्का लगा है और डायरेक्टर ने भी इस बात का एतराफ किया कि काफी नुकसान हुआ है। वादी कश्मीर में हुई हालिया बर्फबारी के बाद मेवा सनत को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। इसी बीच महकमे ने किसानों, बागात मालिकान के लिए एक खुसूसी एडवाइजरी भी जारी की है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे जहूर रिजवी ने डायरेक्टर हार्टिकल्चर से खुसूसी बातचीत की। मौजूद है डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट। इनसे बात करेंगे जो हालिया बर्फबारी से मालिकाने बागात जो है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और साहब आपका खैर मकदम है, ये बताइए कि ये जो ओवरऑल हालिया बर्फबारी की वजह से जो मालिकाने बागात मुतासर हुए, क्या लगता है आपको, क्या असेसमेंट है डिपार्टमेंट की और आपको क्या फीडबैक मिला अभी तक? अभी तक भी लगभग तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्टों का मैंने विजिट किया है, आज कुलगाम का भी किया। तो जो ये क्वांटम ऑफ डैमेजेस है वो काफ़ी सारा है, खासकर यहाँ कुलगाम का, यहाँ DH पोरा का। तो हम एसेस कर रहे हैं इंशाल्लाह रेवेन्यू के साथ, और जो भी मुनासिब मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। तो ये देखा जा रहा है कि लास्ट टाइम भी काफ़ी, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की,
कंपनसेशन तो इशू किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कंपनसेट नहीं किया गया, और पिछले साल का भी अभी बकाया है, और इस साल भी एक भारी बर्बादी हुई। अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो अभी कैसे कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट या आपका महकमा? इस साल सरकार इसका जायज़ा ले रही है तकरीबन डेली बुनियादों पर। आज भी मैंने छुट्टी होने के बावजूद भी विज़िट भी किया और मैंने 2 बजे श्रीनगर में मीटिंग भी रखी है। इसमें हमें डिमांड भी आई है काफ़ी ग्रोवर से, कुछ कटर या कोई ये जो प्रूनिंग के छोटे छोटे टूल हैं वो देने की, तो उस पर भी मैं जायज़ा लूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक जोन में एक कटर में रखूँगा जहाँ ये यूज़ करेंगे फ्री ऑफ कास्ट, वो उनको दिया जाएगा, मतलब फ्री दिया जाएगा उनको, ताकि वो कटिंग के लिए उसको यूज़ करें। जहाँ बड़े उनको दरख्त काटने हैं, कहीं जड़ें अलग करनी है, वो दिया जाएगा, या जो भी छोटे मोटे टूल्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे देने की, और हम इसका जायज़ा लेते रहेंगे और सरकार को जो भी डैमेज रिपोर्ट है वो भेज देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि देखा ये जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ आप एसेस करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो ज़मीन के हिसाब से देखती है। अगर आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ही पता होता है कि पेड़ की कीमत क्या है, फ्रूट का एसेस करना क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं और कुल मिलाकर इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम पेड़ के हिसाब से ही देखेंगे इस साल, और हम देखेंगे नुकसान भी कितना है और पेड़ों का भी कितना नुकसान है, उस हिसाब से। लास्ट ईयर भी हमने असामी वाइज और एरिया वाइज किया था, लेकिन उसके साथ साथ हम पेड़ का भी जायज़ा लेंगे, पेड़ भी कितने नुकसान हुए हैं और कितने अमाउंट का नुकसान होगा वो भी देखा जाएगा। अच्छा, ये जो अभी देखा जा रहा है कि हर साल कंपनसेट करते हैं आप, तो अब गवर्नमेंट के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं है जो एक साथ ही जो मालिकाने बागात है या फ्रूट ग्रोवर्स है उनको कंपनसेट किया जाए एक बार ही, ताकि वो इंश्योरेंस के जुमरे में लाया जाए? इंश्योरेंस पॉलिसी पर काम हो रहा है, कुछ कंपनीज आई है इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने शायद जो ये इसका प्रीमियम है वो हायर साइड दिखाया गया है, उसमें शेयर करना है स्टेट और ग्रोवर को, तो वो शायद ग्रोवर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा प्रीमियम। इस पर काम हो रहा है, इस पर मतलब बाज़ाब्ता जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि इसका रीजनेबल प्रीमियम बनना चाहिए, तभी ये इम्प्लीमेंट। अच्छा, लास्ट में एक एडवाइजरी क्या होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आपने खुद भी देखा आपकी रीच आउट नहीं है, आपका मेन पावर बहुत कम है, तो क्या रहेगी आपकी एडवाइजरी? मैं पहले आपका शुक्रिया करूंगा कि आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। एडवाइजरी यही है मेरी तरफ से कि जब भी बर्फबारी होती है तो बर्फ़ पर जमने नहीं देना है बर्फ़ को इस पेड़ पर, और इमीडिएटली प्रूनिंग करनी है, जो प्रूनिंग शाख तराशी करनी बाकी है उसको करना है। बागों में पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि उससे पेड़ उखड़ जाते हैं, और अगर कहीं सब्ज़ ज़्यादा पान है और वो कर सकते हैं वहाँ यूरिया की स्प्रे 4 से 5 किलो फी 100 लीटर पानी में वो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे पत्ते जड़ जाएंगे, पत्ते उतरेंगे और ये हल्का रहेगा पेड़, और शाख तराशी इमीडिएटली कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एजाज अहमद भट्ट जो हमारे साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इंतज़ामिया या मुतलका महकमा कोशा है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फिर से रिवाइव किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। डायरेक्टर हार्टिकल्चर मंजूर अहमद लून ने चीफ हार्टिकल्चर अफसर बारामूला और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे का मकसद हालिया बर्फबारी से सेब के बागात को हुए नुकसान का जायजा लेना था। लून ने संग्रामा के पोतुखा का भी दौरा किया। यहाँ सेब के बागात को भारी नुकसान पहुंचा है। बाग मालिकान ने डायरेक्टर हार्टिकल्चर को उनकी बागात को हुए नुकसान के बारे में आगाह किया और साथ ही उनसे कुछ मुफीद मशवरे हासिल किए। उन्होंने डायरेक्टर से माकूल मुआवजे की भी अपील की। डायरेक्टर मंजूर लून ने उन्हें यकीन दिलाया कि तखमीने के बाद उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाएगा। मुकाम कम अज कम 50-50 अड़िस 90% नुकसान तो ये गुजारिश करान अल्लाह ताला तरफ तो डिपार्टमेंट करान थोड़ा हावन मतलब अत क्या करो हूँ डिपार्टमेंट ये गुजारिश करान कि थोड़ा पन कर लूको करे कोशिश मतलब छान 2-3 लट तम पे पाने वो पान लाइव तुचान जनाब पोजिशन क्या बागन यह 50 वोर कुल यह मकलो यह गो नई सर 50 वर तैयार तम सात कुस जान सह अल्लाह ताला बेहतर जाना तो बेहतर अफजल वनकन उम्मीद पूर अल्लाह ताला तबारक ताला तम पत युस जन वनकन मौजूद यह सरकार मौजूद यह डिपार्टमेंट वनकन शान बशान सत हमेशा आसान और वनकन त रोजन सत ताकि अस मिले इन कह राहत जनाब। हार्टिकल्चर और रेवेन्यू जॉइंटली जाएंगे बागों में और असामी वाइज नुकसान का तखमीना लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जो डैमेजेस हैं इसको देखने की ऑन ग्राउंड।
तो इसमें कुछ दिन लगेंगे, तो हम इंशाल्लाह सरकार को ये भेज देंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि लास्ट ईयर की तरह जो कंपनसेशन दिया गया उसी तरह इस साल भी कंपनसेट किया जाएगा ये लॉसेस। हालिया बर्फबारी ने तबाही मचाई है, ताहम शोपियां और पुलवामा जिले में इंतजामिया की जानिब से नुकसान का तखमीना नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से मेवा काश्तकारों में काफी तशवीश पाई जा रही है। 4 रोज गुजर जाने के बाद भी अभी तक जिला इंतजामिया की कोई भी टीम ने मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा नहीं लगाया। मेवा काश्तकारों ने मुआवजा देने की अपील की है। तकरीबन 50% खोत ज्यादा नुकसान 70% नुकसान रूदून कहें तो बकाया सठा कोशिश करे दुनिया शीन सुबार आए त्रुबार आए 7 बजे पत वाक़ा गो 5:30 पे 7 तम तम थो पे बकाया क्या पत क्या करा रात कुछ अल्लाह ताला सुन खबर क्या गामस ने इलाकस ने वनस तम आव न योर कह योर दिसे नजर कंस दिस नजर जन बेवसील योर जन पस पिश पेमित योर आव न कहीं नजर न गुजर न कह आव न योर करा मौक वुचा बाग वाल अगर न दिहान क्या तो करान दिलबरी तो करान कथरंग बाथरंग करान मुतमईन है परवाह 70-80% नुकसान हुआ है। कोई आया नहीं यहाँ पे, कोई नज़र गुजर देने के लिए कोई नहीं आया। महराना हिसाब से कोई आया नहीं, पटवारी पे कोई नहीं आया। इधर बहुत नुकसान हुआ है हमको। पर साल इससे थोड़ा ही नुकसान, पर साल टीम बनाई गई थी, आया था पर साल कोई, मगर इस साल आज चौथा दिन है, 5वां दिन, कोई नहीं आया था। वादी कश्मीर में हालिया बर्फबारी से बिजली सप्लाई पूरी तरह मुतासिर हुई है। महकमे बिजली के मुलाजमीन और आला अफसरान बिजली सप्लाई को जल्द बहाल करने में मसरूफ है। बिजली सप्लाई को बहाल करने में महकमे के चीफ इंजीनियर अज खुद निगरानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर भी पटन, मागाम और अमरगढ़ में बिजली की बहाली को लेकर काम में लगे हुए हैं। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन श्रीनगर हमीदुल्लाह ने बिजली की बहाली को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत की। शदीद बर्फबारी की वजह से जो नुकसान हुआ है, टावर्स गिर चुके हैं, पोल गिरे हैं और यहाँ तारे गिर चुके हैं, ट्रांसफार्मर गिरे हैं कई जगह पे, कई जगह मकामात पर जो ग्रिड स्टेशन है उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। तो कितना काम आपका हुआ है अब तक और कितना काम अभी बाकी है और कब तक की बिजली सप्लाई रेस्टोर हो जाएगी? पहले जो हमारा नॉर्थ कश्मीर के पूरी जो लाइन्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स 220 और 132, ये सारी डैमेज हो चुकी थी, तो इनको हम अभी रेस्टोर कर रहे हैं। पिछले दिनों से काम बड़ी सूरत से जारी है। आज हम इसका एक दिलना ग्रिड जो 220 kV लेवल का ग्रिड है, आज इसको हम शाम तक रेस्टोर करेंगे। उससे नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी हद तक पावर सप्लाई पोजीशन जो है वो बहाल हो जाएगी। फिर हमारी और 2 लाइन्स हैं, उस पर जो एक है अमरगढ़ पटन लाइन, उस पर भी आज शाम तक मेरे ख्याल से वो भी रेस्टोर हो जाएगी। और दूसरी लाइन है वो जैनकोट पटन लाइन, उसमें अभी 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। उससे हमारा जो नॉर्थ कश्मीर है उसकी पूरी कनेक्टिविटी जो सब ट्रांसमिशन लाइन की है वो बहाल हो जाएगी। हमारा जो पटन से निहालपुरा अहमदपुरा जो लाइन है उसमें एक टावर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, उसमें हम एक ERS इरेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें 1-2 दिन का काम लग जाएगा। ERS जो हमारा एक खुसूसी है इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, वो उसमें हम इरेक्ट कर रहे हैं, उसमें 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। खुद भी देखा कितनी शिद्दत से हम काम कर रहे हैं, बड़ी सूरत से काम जारी है। जितनी जल्दी हो सके हम पावर रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया भारी बर्फबारी की वजह से करना से लेकर कुपवाड़ा तक बिजली निजाम दरहम बरहम हो गया है। जिला भर में बिजली निजाम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हर साल करोड़ों का फंड बिजली निजाम में सुधार के लिए वागजार किया जाता है, ताहम जमीनी सतह पर निजाम में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मकामी लोग महकमे पर तरह तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा कस्बे के साथ साथ जिले के हंदवाड़ा, लोलाब और लंगेट में भी सैकड़ों देहात घुप अंधेरे में है। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं। सड़कें हों या खेत खलिहान, मैदानी इलाके हों या फिर ऊपरी इलाके, जगह जगह तरसीली लाइनें गिरी हुई हैं।
जिले के अक्सर इलाकों में इस सूरत हाल के चलते लोग बेहद परेशान हैं और ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल नहीं कि जिले में बिजली निजाम की हालत किस कदर बुरी होकर रह गई है। सोचने वाली बात यही है कि मुताल्लिका महकमे की जानिब से बिजली निजाम को दुरुस्त करने के लिए हर साल करोड़ों की रकम का जो खर्चा कागजों में दर्ज किया जाता है, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बर्फबारी हुए करीब एक हफ्ते का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जिले में महकमा बिजली है कि ख्वाबे गफलत में है। जिला कुपवाड़ा के करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लंगेट के तमाम इलाके मुसलसल बिजली से महरूम ही हैं। यही नहीं बल्कि अस्पतालों और दीगर इमरजेंसी इदारों में भी अभी तक बिजली बहाल नहीं की गई है। आज पर शीन मामूली 2-4 शीन पे बिजली नामो निशान गवर्नमेंट खामोश बिहित बिजली लोग परेशान। बच्चन एग्जाम चलान वनकस, खास कर लकटन बच्चन लकटन क्लास मैट्रिक वालन 12th वालन लकटन क्लासन एग्जाम चलान। बिजली योर सर्दी हूं वनकस मौसम चलान। 5 दो पे टोटल कहीं अगर 4 शीन पे तो महकम तैयार अम खतर कह लिहाज तैयार कह मतलब यह फी वरी गसनी तो यह गो ज्यादा 5 दो गए वुचन से बच्चन मुश्किलात ये जन बह काजी आबाद पे काजी आबाद अजन जायन मटीरियल बिजली वाले तुम वनकस कम अगर तुम करान वनकस मगर मटीरियल तुम अवेलेबल कह। लोग इस वक्त बहुत सफर में है, सफर काट रहे हैं क्योंकि बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं, उनके पास लाइटें नहीं हैं, बड़ी ज़बरदस्त मुश्किल आ रही है ना। अभी तक कुछ गांवों में हमारे कुछ ऐसे महल्ले हैं, मैं सरपंच के हैसियत से बोल रहा हूँ, मेरे कुछ महल्ले ऐसे भी है जिनमें अभी तक एलटी लाइनें पूरी नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर जिनके ऊपर एक बड़े बड़े दरख्त गिरी हुई है, अभी तक वो उठाई नहीं गई है। अगरचे महकमा बिजली के एहलकार कई मुकामात पर बिजली निजाम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बिजली बहाल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लोगों का इल्जाम है कि महकमा सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है। लोगों का मुतालबा है कि जिला भर में बिजली निजाम को बहाल करने के लिए हंगामी नौयत के इक़दाम उठाए जाए। बिजली के मसले के चलते इम्तिहानात में शरीक तलबा सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इम्तिहानात की तैयारी करने में सबसे ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। तलबा ने भी इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि जिले में बिजली सप्लाई की बहाली को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। एक्जम साहब खुद रात कल हमारे एरिया में घूम रहे थे, वो कह रहे थे कि आज ही हो जाएगा रेस्टोर, लेकिन नहीं हुआ है। लिहाजा सफर कर रहे हैं हम, परेशानी है। हम ड्यूकाम साहब से, हम डीसी साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से इल्तिजा करते हैं कि खुदा रहा इन सर्दी के अयाम में ही हमें बिजली की जरूरत होती है। जब आज भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर किस लिए ये महकमे परेशान हो रहे हैं कि हम अब एग्जाम में कल लिखें तो लिखें क्या, क्योंकि उनके पास लाइटों का कोई इंतजाम ही नहीं है। अब शम्मा भी, उन मोमबत्तियां भी उनको दुकानों पे नहीं मैसर होती है, क्योंकि सारा निज़ाम ही बैठा है। जैसे कि सरकार कहीं उन्होंने नींद की गोली खाई है। जैसे कि अस्पतालों में हम जाते हैं, बीमार वहाँ परेशान है, रात भर वो मोमबत्तियों के सहारे अपनी रात गुजारते हैं। बिजली सप्लाई मुनक़ते रहने की वजह से जिले में ताजिर बरादरी बेहद परेशान है। इनका कहना है कि अगर जिले में फौरी तौर पर बिजली सप्लाई बहाल नहीं की गई तो वो महकमे के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस जिले भर में तमाम ATMs बेकार हैं। उधर महकमे के जिम्मेदारों का कहना है कि वो जिले में बिजली सप्लाई की बहाली को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज 18 को बताया कि बिजली बहाल करने के लिए पूरे जिले में अमले को मुतहर्रिक कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है। आप तो कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, मगर यही क्या, इसी चीज का नाम डेवलपमेंट है। हम इसी चीज की तरफ जा रहे हैं। नया कश्मीर इसी चीज का नाम है। उम्मीद यही की जा सकती है कि ये रिपोर्ट नश्र होने के बाद शायद सेक्रेटेरिएट में बैठे इंतजामिया के आला ऑफिसर्स जाग जाएं, ताकि जमीनी सतह पर लोगों की मुश्किलात को देखते हुए हंगामी नौयत पर बिजली को बहाल करने के लिए कोशिशें तेज की जा सकें। न्यूज 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। 3 रोज के बाद 300 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शाहराह पर दरमानदा हुई ट्रक और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत दी गई। याद रहे कि रामबन सेक्टर के जगडोल इलाके के करीब शाहराह पर बर्फानी तोदे गिरने से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया।
पिछले 5 दिनों से कुपवाड़ा जिले में बिजली की अदम दस्तयाबी ने लोगों को मुश्किलात से दोचार कर दिया है। वहीं जिला कुपवाड़ा में एटीएम मशीनें भी बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिले में अक्सर बेशतर एटीएम मशीनें बेकार या खाली पड़ी हैं, जिससे आवाम में बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। से नहीं निकलता है, अब ये एक्सक्यूज लेते हैं कि हमारे पास बिजली का कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये प्राइवेट एक इदारा है, जब इनके लिए अपने बैंकों में एसी रूम्स हैं, उनके लिए बिजली जब होता है तो एटीएम के लिए क्यों नहीं। तो हम कलारू से लोलाब से वहाँ जो बिजली का नाकस निज़ाम है, 6 इंच की बर्फबारी की वजह से पूरा बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। तब से लद्दाख के एलजी माथुर ने करगिल का दौरा किया। एलजी ने LHDC करगिल के नुमाइंदों, ज्वाइंट एक्शन कमेटी और दीगर वफूद के साथ एक मीटिंग तलब की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान LG राधा कृष्णा माथुर ने लद्दाख की फरकाना हम आहंगी कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो करगिल को माशी तौर पर फलते फूलते देखना चाहते हैं। Union territory has been carved out, covering Leh and Kargil districts. कार्तिक पूर्णिमाशी के सिलसिले में आज जम्मू में कई तकारीब का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में शास्त्री नगर जम्मू में हुई तकरीब पर खुसूसी लंगर का अहतमाम हुआ। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को शिव योग की तरफ आकर दुनिया के दुख दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रकाश उत्सव के मौके पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर्स लारकीपुरा अनंतनाग में सिख लाइक यूनिट की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम हुआ। इस मौके पर अखंड पाठ और शब्द कीर्तन का भी अहतमाम हुआ। कमांडिंग अफसर कर्नल तुषार ने फौजी जवानों को प्रकाश उत्सव के लिए मुबारकबाद पेश की और जवानों को गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होने की तलकीन की। जनूबी कश्मीर के DIG अतुल कुमार और SSP अनंतनाग अल्ताफ खान ने प्रकाश उत्सव के मौके पर गुरुद्वारा मटन साहब में हाजिरी दी। इस मौके पर कश्मीर की खुशहाली और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। DIG जनूबी कश्मीर ने लोगों को गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की। गुरुपुरब के मौके पर बडगाम में सबसे बड़ी तकरीब गुरु हरकृष्ण देव जी गुरुद्वारा शोकपुरा में मुनक्किद हुई। इस मौके पर DC बडगाम ने सिख तबके को मुबारकबाद पेश की और लोगों को गुरु नानक जी के बताए हुए अमन और भाईचारे के रास्ते पर चलने की तलकीन की। DC ने इस मौके पर सिख तबके को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। छठी बादशाही गुरुद्वारा बारामूला में गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश मनाया गया। सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने भारी तादाद में तकरीब में शिरकत की। अकीदतमंदों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर गुरु नानक की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कस्बतराल में भी इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ गुरुद्वारों में तकरीबात का अहतमाम किया गया। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। मुसलमानों ने भी शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इत्तराल की जानिब से गुरुद्वारों के बाहर स्टॉल लगाए गए थे और कई जगहों पर गुरु नानक देव जी की जिंदगी पर सेमिनार भी मुनक्किद किए गए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने बारामूला के कई सनती यूनिटों का दौरा किया। इस मौके पर 5 अगस्त के बाद से अब तक शोबे सनत को हुए नुकसानात का जायजा लिया गया। इस दौरान इस सनत से वाबस्ता अफराद को मुआवजा देने पर गौर व किया गया। बाद में DC ने महकमे बिजली के अफसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। उन्होंने अफसरान पर बिजली जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया। इस मौके पर आने वाली मौसमी तब्दीलियों में तैयारियों के हवाले से भी बातचीत की गई। जिला खटवा के बिलावर के मकवाल इलाके में 18 साला पुरुषोत्तम कुमार पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में पुरुषोत्तम की मौत वाक़ हो गई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। SDPO बिलावर रविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरुषोत्तम किसी काम से घर से निकला था। वापसी न लौटने पर उसकी तलाश की गई। इस दौरान 100 मीटर की दूरी पर उसे मुर्दा पाया गया। वाक़े के बाद मकामी लोगों में इंतजामिया के खिलाफ काफ़ी गम व गुस्सा पाया गया।